So hello friends, welcome to the next session of definite integrals. So we are dealing here with the property 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x. What is a here is the upper limit. We have already discussed the proof of this result in our previous session, that is session 2 of definite integrals. Right, so here we will be taking examples based on this. And this is one of the most important property in the entire definite integrals. This is actually a topic from where you can expect at least one question in board examinations, be it 1 mark question, 2 mark question, or 4 mark question, and could be there in a long answers also, as in a 6 mark question also. Right, so let's have one very simple example to start with. Like if this is 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x. इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस यही है कि इसका लोअर लिमिट जीरो है. जब भी आपके पास लोअर लिमिट जीरो आएगा, what you have to do, you have to apply this property, right? So now what is f of x here? This is the function integrand f of x, right? So what is a here? A is the upper limit, that is pi by 2 minus, that is pi by 2, right? Now since we know that 0 to pi by 2 f of x dx, by using this property, right, it has to be equal to 0 to pi by 2 f of pi by 2 minus x dx. क्या किया हमने इस प्रॉपर्टी में, a की जगह पर क्या था पाई बाई टू, जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ हमने पाई बाई टू लिख दिया, राइट? इफ आई मार्क इट एज फर्स्ट, okay, so then if first is equal to I, it means if this value is I, this value will also be equal to I, right? But in order to obtain this value, what do I need is f of pi by 2 minus x. So let me find out f of pi by 2 minus x. What is f of x? I have already encircled it. F of x is sin x upon sin x plus cos x. What is f of pi by 2 minus x? This is sine of pi by 2 minus x upon sine of pi by 2 minus x plus cos of pi by 2 minus x, right? So this will be equal to sine of 90 minus theta is what? Cos theta upon, this is sine of 90 minus x cos x, and this is cos of 90 minus x is equal to what? Sin x. So this is the value of f of pi by 2 minus x, right? It means that I will be equal to, right, if I substitute this value of f of pi by 2 minus x here, 0 to pi by 2 cos x upon cos x plus sin x dx, and we mark it as second. ओके, इसको हम क्या मार्क कर दिया? सेकेंड मार्क कर दिया. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वाज सपोज टू इवैल्यूएट दिस. अब मेरे पास एक काइंड ऑफ रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट? सो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन करूँगा दोनों का, तो बेनिफिट क्या हो जाएगा कि न्यूमरेटर विल ऑल्सो गेट एडेड. सो व्हाट आई डू इज आई एड 1 and 2. So when I add 1 and 2, what do I get in the denominator is sin x plus cos x, और दोनों के न्यूमरेटर्स भी ऐड हो जाएंगे. It will be sin x plus cos x and here it will be dx. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? कैंसिल. तो 0 to pi by 2 dx इंटेग्रेट कर देंगे x 0 to pi by 2. It means that twice of I is equal to upper limit minus lower limit. x की जगह तो this is pi by 2. सो आई क्या आ गया मेरे पास? पाई बाय 4. ये एक बड़ा ही बेसिक एग्जाम्पल था बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx, राइट सर? अब हम क्या करते हैं, वी टेक अनदर केस. लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल. So I have taken another example. I is equal to 0 to 1 x into 1 minus x whole raised power n dx, right? So अब क्या करूँगा मैं इसको सॉल्व करने के लिए? Again I'll apply the property lower limit is 0.
this is f of x. What is a here? 1. So according to question, 0 to 1, 0 to a f of x dx is to be equal to 0 to 1 f of a minus x dx. ये प्रॉपर्टी है हमारी, राइट सर. तो चलो इस पे काम करते हैं. एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज पावर एन. सो व्हाट विल बी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स पुट कर दोगे आप. 1 माइनस एक्स होल रेज पावर एन. सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज पावर एन. 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट. So if this was equal to I, ये I था ना, ये इंटेग्रल, so it means this is also equal to I. So it means I equal to, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, it will be 0 to 1 1 minus x into x raised power n dx. What is actually the meaning of applying property? पिछला क्वेश्चन किया हमने, उसमें ऐड किया. बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बिगिनिंग में 5-6 क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में भी हैं, यू ऐड देम यू गेट द आंसर. बट इसका मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट कि 2 इंटीग्रल ऑब्टेन करके उनको ऐड करना. ऑब्जेक्टिव इज टू सिंप्लीफाई. पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जब हम ऐड कर रहे थे न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर आ रहा था, ठीक है, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा था. यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे दिस इज द बाइनोमियल रेज पावर एन. यहाँ पे जब मैंने प्रॉपर्टी यूज की तो रेज पावर एन किसकी होगी? मोनोमियल की होगी. नाउ दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. आई कैन सिंप्लीफाई दिस. बेसिक जो फॉर्मूला था, दिस इज एक्स इंटू एन. 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको इससे किया बेसिस, सेम पावर्स एडेड हो गई, राइट सर. अब इसको इंटेग्रेट कर दो. सो एक्स रेज पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स रेज पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2. लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई? 0 to 1. So this will give you that I is equal to, अपर लिमिट पुट किया आपने, 1 की जितनी मर्जी पावर लिख लो, फाइनाइट पावर तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 की फाइनाइट पावर 1 ही रहेगा, n प्लस 2. और माइनस 0 पुट करने का मतलब नहीं, 0 ही रहेगा. तो दिस इज इक्वल टू, यू टेक द एलसीएम, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज द आंसर. ओके. सो एक चीज़ माइंड से आपने निकाल देनी. ये मतलब नहीं है प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करना है. यू हैव टू लुक एट, अगर रैशनल फंक्शन है तो बहुत बार हम उसको ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, वो सिंप्लीफाई होकर हमें एक आंसर देता है. बट अगर वो प्रोडक्ट में आ रहा है, सो आपने कोशिश क्या रहती है, अगर कोई बाइनोमियल वगैरह कोई ऐसी टर्म है जिसकी रेज पावर n है, जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा, इसमें n प्लस 1 टर्म्स आनी थी, तो जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो ये रेज पावर जो है वो मोनोमियल की हो गई. अब मोनोमियल पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना मुश्किल था. और अगर प्रॉपर्टीज में नहीं पूछा हो गया, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ, 1 माइनस एक्स को टी ले लेते, सब्सटीट्यूशन कुड हैव बीन अदर ऑप्शन. बट हियर वी आर डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज, सो वी आर थिंकिंग लाइक व्हाट वी थिंक इन प्रॉपर्टीज. So let's have next example. So next question I is from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. एक और अच्छा क्वेश्चन, अगेन सेम प्रॉपर्टी. तो अब हम इसमें जा रहे हैं, तो हमें पता है 0 to pi by 4 f of x dx will be equal to 0 to pi by 4 f of pi by 4 minus x dx. This is what the property is. राइट. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स यार? दिस इज एफ ऑफ एक्स. इंटेग्रेंट जिसको आप इंटेग्रेट कर रहे हो, राइट बॉस. तो चलिए अब डायरेक्ट हम लिखते हैं बात. सो देयरफॉर एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स चाहिए मेरे को. सो व्हाट विल बी एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स? एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू log of 1 plus tan of पाई बाई 4 माइनस एक्स. आ गया हमारा चहीता फॉर्मूला. तो दिस इज log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. फर्दर सॉल्व किया, सो एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दिस इज log ऑफ, यू टेक द एलसीएम, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, तो 2 अपॉन 1 प्लस tan x, राइट. सो इस सिचुएशन में ये क्या बन जाएगा? बिकॉज इफ दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई, सो दिस विल 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, log ऑफ 2 upon 1 plus tan x. Now we have got a specific property of log.
log m plus log n is equal to log of m into n. अगर मैं इन दोनों इंटेग्रल्स को ऐड करता हूँ, राइट, तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास. ओके, so if I add, I mark it as first and I mark this one as second. Okay, so this is the property if I use, so it will be twice of I, that is adding 1 and 2 will give you लिमिट आएगी 0 to pi by 4. ठीक है, log m plus log n, it will be log of m plus log n. dx. So this will be 0 to pi by 4 log m into n, तो 1 plus tan x into 2 upon 1 plus tan x dx. 1 plus tan x, 1 plus tan x क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो अभी कैंसिल हो जाएगा, सो ट्वाइस ऑफ आई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड will be 0 to pi by 4. Okay, and log of 2 dx. Log of 2 being constant will come out of the integral 0 to pi by 4 dx, which is equal to log 2. This is x when you integrate dx, 0 to pi by 4. Okay, so this will give you that I is equal to 1 by 2 into log of 2 into pi by 4. So 1 by 2 into pi by 4 will be what? Pi by 8 log 2. So this is the answer of the integral. So again here we added 1 and 2. Why did we add 1 and 2? Because we had log, and log of m plus log of n gives us log of m into n. और जो दोनों functions थे हमारे पास, एक में log of 1 plus tan x था, दूसरे में 2 upon 1 plus tan x था, तो वो प्रोडक्ट में रेसिप्रोकल बन रहा था, कैंसिल हो गया, इट मेक इट सिंपलर. इसीलिए हमने वापस यहाँ पे ऐड कर लिया. But you need to be versatile in the approach. You cannot be rigid कि मुझे दोनों प्रॉपर्टी लगानी और ऐड करना है. It's not every time like that. Let's have another example. So there is another question, 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x. प्रॉपर्टी लगा दो, f of x दिख रहा है सामने, ये वाली चीज़ सारी f of x है, राइट. So I will be 0 to pi by 2 f of pi by 2 minus x, तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स. ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, लेकिन प्रोडक्ट है तो पहले मैंने साइन लिख दिया. एंड डी एक्स विल बी हियर. नाउ इफ यू ऐड दीज, आई प्लस आई विल गिव यू व्हाट, ट्वाइस ऑफ आई, इट विल बी 0 टू पाई बाई 2. डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हमने ऐड करने की कोशिश की. लुक एट द न्यूमरेटर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी एक्स कैंसिल, 0 अपॉन इक्वल टू 0, राइट. तो इसका आंसर ही 0 हो गया. सो समटाइम्स यू कैन वेरी इजी क्वेश्चंस आल्सो, नॉट नेसेसरली हर टाइम इट विल गोइंग टू बी लेंथी, राइट. सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. नाउ दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लॉग लगा है, लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, राइट. सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, दिस थिंग, लोअर लिमिट क्या है, 0 हमारे पास. सो इसका मतलब 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स is equal to 0 to pi by 2 f of pi by 2 minus x. यही होना चाहिए था हमारे पास, है ना. तो इसका मतलब दिस थिंग विल ऑल्सो भी इक्वल टू आई. सो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. सो ये एफ ऑफ एक्स है मेरे पास. अब मैं यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स अगर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 4 प्लस 3. जब मैं यहाँ पे साइन पे लूँगा पाई बाई 2 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3. जब मैं कॉस में एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स. आई विल मार्क इट एज सेकेंड, दिस इज ऑफ कोर्स फर्स्ट. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. क्यों ऐड करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले लॉग वाला क्वेश्चन पढ़ा, क्या था, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम इन टू एन. तो जब मैं इनको ऐड करता हूँ दोनों को, तो क्या बनेगा मेरे पास, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई, 0 to pi by 2 log of m into n, 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x into what is there in place of n, 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x. नजर घुमाइए साहब, बस कैंसिल हो गया ये सारा. सो दिस इज 0 to pi by 2
log 1 dx, and log 1 is equal to what? 0. So integration of 0 is what? 0, whatever is the limit. Right, friends? So this was another question based on this. Now let's take another interesting example, a very specific example. So I have considered an integral with lower limit as 0, upper limit as pi, dx upon 1 plus sin x. I have taken a very simple integral. There could be many more of this type. Right? So what is f of x? This thing is actually f of x. 1 upon 1 plus sin x. Okay, sir. Now, if I apply the property 0 to pi, f of x dx equal to 0 to pi f of pi minus x dx. प्लीज एक चीज नोटिस करिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हैं अभी आप. What is f of x? 1 upon 1 plus sin x. What is f of pi minus x? 1 upon 1 plus sine of pi minus x. So this is 1 upon 1 plus sin x. Isn't it equal to f of x? So this is quite an interesting thing. अगर हमारे पास f of upper limit minus x equal to f of x आ जाए, that is in general if I say f of a minus x is equal to f of x, अब प्रॉपर्टी लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि सेम वो फंक्शन वही बन गया. देयर इज नो सिंप्लीफिकेशन, कुछ कर ही नहीं सकता मैं. सो जब आपके पास एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स लगा के फंक्शन वापस वही आ जाए, फंक्शन में कोई चेंज ना आए, सो ये प्रॉपर्टी लगाना उस समय हमारे लिए एक मूर्खता हो जाती है. Right, friends? So in that case we are not able to apply this property 0 to a f of x dx equals. It means in order to apply this property सबसे पहले हमें ये चीज चेक करनी चाहिए, f of x और f of a minus x. अब मैंने ये नहीं कहा कि अब आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते. So it gives to, it actually gives us another property. When lower limit is 0, upper limit is something else, this property is not working, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी बनती है. So let me introduce that property to you. So there is a property 0 to twice of a. फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में तो 2 साथ लिखा हुआ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. हाँ, हो सकता है कभी 2 पाई हो तो 2 आ जाए, अदरवाइज पाई है या पाई बाई 2 है तो 2 आपको नहीं दिखेगा. दैट इज समथिंग इनविजिबल. सो इसको मैं अपर लिमिट बोलता हूँ. तो 0 टू ट्वाइस ऑफ ए को क्या करता है, 0 टू ए ट्वाइस ऑफ ए से कैसे रिलेटेड है, हाफ लिमिट. एंड अगेन 0 टू ए, दिस इज एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स. ठीक है, इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं. कैसे होता है ये, लेट्स चेक इट. लेट्स चेक द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो 0 टू ट्वाइस ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए से ट्वाइस ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट सेशन में, दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट. लेकिन मेरे पास तो यहाँ कुछ और चीज़ है. इसका मतलब ये हो गया दिस थिंग शुड एक्चुअली बी इक्वल टू दिस थिंग, तभी तो ये प्रूफ होगा. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स चेक फॉर इट. What I do is I substitute twice of a minus x equal to some t. It means that x, if I take it to this side, will be twice of a minus t. Now this limit, so first of all differentials are to be changed. So dx is equal to minus dt. Okay, and the second is the limits. So when x is equal to a, you put x equal to a, t is also equal to a, twice of a minus a. And when x is equal to twice of a, t is equal to twice of a minus twice of a will be what? 0. So this integral actually, a to twice of a f of x dx will give us what? a के टाइम लिमिट a थी, twice of a के टाइम लिमिट 0 थी, राइट. x किसके बराबर था, twice of a माइनस t के बराबर था, और dx किसके बराबर हो गया था, माइनस dt के. dt में यहाँ लिखता हूँ, माइनस बाहर लिख देता हूँ. और व्हाट विल हैपन हियर इज इफ आई इंटरचेंज द लिमिट्स, तो एक माइनस हो रहा जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. लिमिट हो जाएगी 0 टू a, इट विल बी f ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस t
dt। ओके, ये चीज़ आ गई हमारे पास। और हमने ऑलरेडी एक चीज़ पढ़ रखी है कि दिस विल बी इक्वल टू 0 टू a f ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस x dx, है ना, था ना हमारे पास डमी वेरिएबल वाली पहली प्रॉपर्टी। तो इट मीन्स इस चीज़ की जगह पे a से लेके ट्वाइस ऑफ a f ऑफ x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 टू a f ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस x dx, हैंस प्रूव्ड। इन सब प्रूफ के एक बड़ा ट्रेडिशनल सा मेथड आप देख रहे हो, जहाँ पे भी थोड़ी सी फंक्शन के डोमेन में शिफ्टिंग हो रही है, उसको आप टी ले लेते हो, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, लिमिट्स इंटरचेंज करते हो, और हर क्वेश्चन में जाके लास्ट में जो आंसर टी में आता है वहाँ पर आप टी की जगह एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हो, ठीक है, एंड यू गेट द रिलेशनशिप। इट्स हैपनिंग, जितने भी हमने प्रूफ किए सब में ऐसा ही हो रहा है, राइट फ्रेंड्स। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट बड़ा रेयर यूज़ होती है, ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज़ होती है, अब उस पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो साइन एक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा कि अगर कभी हमारे पास एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, उस फंक्शन को कोई फर्क ना पड़े। इफ यू लुक एट दिस, व्हाट इज अपर लिमिट ट्वाइस ऑफ ए, अगर इस केस में इफ f of twice of a minus x is equal to f of x आ जाए, that is, how will you learn this is very simple। आपको मैं वापस बता रहा हूँ, आपको ट्वाइस ऑफ ए बहुत कम मिलेगा पेपरों में। इफ f of upper limit minus x is equal to f of x आ जाए, राइट, सो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, राइट साइड विल बी 0 टू a f of x dx, 0 टू a। अब ये चीज़ किसके बराबर आ रही है, f of x के, f of x dx, so this will be twice 0 to a f of x dx। तो वो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई। क्या प्रॉपर्टी बन गई, सो प्रॉपर्टी बन गई 0 टू एनीथिंग f of x dx is twice 0 to half of the upper limit, ठीक है, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज ए, तो इसको आप ये कह सकते हो हाफ अपर लिमिट प्रॉपर्टी, राइट। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर, जो अपर लिमिट है उसका क्या हो जा रहा है हमारे पास, हाफ। सो ट्वाइस 0 टू a f of x dx, बट व्हेन इज इट एप्लीकेबल, इफ f of upper limit minus x is equal to f of x। मतलब आप f of upper limit minus x लगाओ, फंक्शन में चेंज नहीं आया, सबसे पहले आप 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स निकाला, अगर तो चेंज आ गया, पहले जो प्रॉपर्टी चल रही थी वो चलेगी, बट अगर चेंज नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, व्हाट यू कॉल इज हाफ लिमिट प्रॉपर्टी। आंसर विल बी ट्वाइस 0 टू हाफ लिमिट, इफ इट इज 0 टू पाई इट विल बिकम 2 0 टू पाई बाई 2, इफ इट इज 0 टू पाई बाई 2 it will become 2 0 to pi by 4, right, if it is 0 to 2 pi it will become 2 times 0 to pi, upper limit will get halved। And another interesting formula for the same, this is 0, the answer is 0 if f of upper limit minus x is equal to f of x। Again I am not saying it twice of a f of upper limit, please, it could be anything। अगर f of upper limit minus x is equal to minus f of x आता है, I'm sorry I did not write minus here, so अगर ये किसके बराबर आता है, माइनस के बराबर आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा 0। तो आप क्या करोगे, फंक्शन लोगे, उसमें अपर लिमिट माइनस एक्स लगाओगे, आपके पास कितने ऑप्शन आएंगे, 3। ऑप्शन नंबर 1 चेंज आएगा, चेंज आएगा पहली प्रॉपर्टी लगा दो। ऑप्शन नंबर 2 कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगेगी हाफ लिमिट वाली। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास फंक्शन आएगा लेकिन बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, राइट। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, और इस एरिया से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्लीज। I've taken a very simple example, 0 to pi cos x dx, right sir। So what we want to check actually is कि इसका इंटीग्रल में क्या आंसर आएगा। ओके, चेक करते हैं फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट, 0, अपर लिमिट पाई नहीं दिख रहा ना, ए या ट्वाइस ऑफ ए कुछ नहीं दिख रहा। सो व्हाट इज इनसाइड द फंक्शन, इंटीग्रेंड क्या है यहाँ पे, cos x। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए लोअर लिमिट 0 हो, सबसे पहले लिखो f of x,
फिर लिखो एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, बस यही डिसाइड करेगा जो भी होना है इसके साथ। cos of pi minus x is minus cos x, isn't it minus f of x? हाँ जी, और जब f of upper limit minus x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, इसका आंसर होता है 0। सो एक MCQ आपका क्लियर हो गया। वेरीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। कॉस का ग्राफ तो याद ही होगा आपको, ठीक है ना। दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहता है कि जितना एरिया ये आएगा A1 उतना ही एरिया ये आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये अबव द एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एरिया होगा, ये जो है बिलो द एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव होगा। हालांकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, बट बिलो द एक्स एक्सिस है, नेगेटिव तो होगा ही होगा। और जब मैं इन दोनों के वेक्टर में बात करूँगा तो अगर मैं इस चीज़ को सपोज करो एक्स मानूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास माइनस एक्स। दोनों को ऐड कर लो, आया आंसर 0 या नहीं आया? यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी इसके साथ, राइट सर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी। अब आते हैं जो पेपरों में आ रही हैं एग्जांपल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेगा आपको ये। लोअर लिमिट क्या है? 0, हमें ज़्यादा पता है नहीं। दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स है? लॉग ऑफ साइन एक्स। क्या चेक करोगे? एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, क्या बन गया? लॉग ऑफ कॉस एक्स। फंक्शन में फर्क पड़ा? बिल्कुल चेंज हो गया फंक्शन। इसका मतलब i इज इक्वल टू 0 to π/2 log of cos x. I'm sure all of you would have guessed it. Why? क्योंकि 0 to π/2 f of x dx जो है will be equal to 0 to π/2 f of π/2 minus x dx के बराबर रहा होगा। ये प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने। ये फर्स्ट था, इसको क्या मान लिया हमने? सेकेंड, राइट। देख रहे हो ये 0 to π/2 f of π/2 माइनस एक्स, ये f of π/2 माइनस एक्स ही है। क्या लगा है फंक्शन में? लॉग। जब लॉग लगे तो हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ट्राई करते हैं एक बार, एडिंग 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 को ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। i प्लस आई ट्वाइस ऑफ आई, 0 to π/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज 0 to π/2 log m plus log n is log of m into n, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक फॉर्मूला होता था एक ज़माने में, 2 sin x cos x इज इक्वल टू साइन 2x। हम अभी भी उस ज़माने में, तो फॉर्मूला चलेगा। तो sin x cos x इक्वल टू वॉट? साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई 2। सो ट्वाइस ऑफ i विल बी 0 to π/2 log of साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई 2 dx, राइट। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और क्या किया मैंने? यहाँ फॉर्मूला लगा दिया log m अपॉन n, log m माइनस log n, और अलग अलग कर दिया। तो ये हो गया 0 to π/2 log ऑफ साइन x माइनस 0 to π/2 log ऑफ 2। सो मैं क्या करता हूँ, दिस विल गिव मी दैट ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू, पहले वाले को ले लेता हूँ मैं, i1 माइनस log 2 बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा 0 to π/2 dx। सो ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू i1 माइनस log 2 इंटू ये बन जाएगा π/2। ये हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, पता ही आप सबको। मार्क इट एज 3। कैसे बन गया ये हमारे पास? ये x हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो हमारे पास 0 to π/2 dx की इंटीग्रेशन निकाली हमने, x 0 to π/2, ये क्या बन गया? π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। तो ये π/2 आ गया साथ। अब मेरे पास रह गया i1। i1 क्या है मेरे पास? i1 इज दिस इंटीग्रल, ठीक है। अब मैं इस इंटीग्रल को वापस सॉल्व करता हूँ। ओके, सो लेट्स कम टू दिस i1। सो ये आ गया मेरे पास 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx, राइट सर। इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ, इसको सॉल्व करना है मेरे को। अब ये क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है, फ़र्क इसका यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे एंगल x है। तो मैं कोशिश करता हूँ 2x को सिंप्लीफाई करने की। सो इफ़ आई पुट 2x इक्वल्स टू t,
it will give you that x is equal to half of t. It will give me that dx is equal to half of dt, राइट। पहली चीज जब सब्सटीट्यूशन करेंगे उसके बाद डिफरेंशियल चेंज होगा, और उसके बाद क्या चेंज होगी, लिमिट। जब x 0 था तो t भी 0 आया, और जब x मेरे पास π/2 था, यहाँ पे x को π/2 पुट करो तो t कितना आया मेरे पास, 2 इंटू π/2, दैट इज इक्वल टू पाई। सो फोर्थ implies I1 is equal to 0 to pi, right, log of sin t dt 1/2 बाहर आ गया, हाफ ऑफ dt था ना, ये हाफ कम्स आउट ऑफ द इंटेग्रल। अगेन फ्रेंड्स, इफ यू look here, so what is f of t, है ना लोअर लिमिट 0, तो मन में विचार तो आएंगे प्रॉपर्टी के, तो क्या आ गया हमारे पास, log of sin t। अब f ऑफ अपर लिमिट माइनस टी निकालो, तो log of sin of pi minus t, right sir? So this will be log of sin t only, and this is equal to log of sin t means this is equal to f of t। तो क्या हुआ, f ऑफ अपर लिमिट माइनस टी करने से फंक्शन को फर्क नहीं पड़ा, तो जब फंक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा तो अब लगेगी प्रॉपर्टी, कौन से वाली, 0 to twice of a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx। अब यहाँ देखो कि आपको 2 दिख रहा है, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू फ्रेंड्स, कि फॉर्मूले में तो हम 2 लिख देते हैं और हम लिख देते हैं ट्वाइस 0 to a करके, ठीक है, बट असल में ये 2 जो है ये दिखता होता नहीं है, इसीलिए हम इसको हाफ लिमिट में रखते हैं। अगर हम इसको हाफ लिमिट में याद करते तो कितना आसान होता, अभी देखते हैं। सो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मेरे पास व्हाट वाज दिस वाज फोर्थ एंड लेट मी टेक दिस एज फिफ्थ, सो फिफ्थ इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा इनटू ट्वाइस हाफ लिमिट, तो लिमिट 0 to पाई वाली क्या होगी, π/2 हो जाएगी, ठीक है, लगी हाफ लिमिट ना, और ये हो जाएगा log ऑफ sin t dt। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। सो I1 विल बी 0 to π/2 log ऑफ sin t dt। और एक ज़माने में हमने पढ़ लिया था कि वेरिएबल चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, डमी वेरिएबल वाली कहानी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है, दिस इज I1 है ना, log ऑफ sin x dx लिख सकता हूँ मैं इसको, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, I। देखिए इधर ध्यान से, I था ना, तो इसका मतलब जो I1 है मेरे पास वो किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। यू मार्क इट एज व्हाट, 6, सो दिस वाज 3, सो फ्रॉम 3 and 6 लुक एट द आंसर, क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल टू I1 की जगह हो गया I माइनस π/2, पहले लिख लेता हूँ log 2। अब बताने की मुझे नहीं लग रहा ज़रूरत है, क्या हो गया हमारे पास, ये I इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2i माइनस I इज इक्वल टू माइनस π/2 log ऑफ 2। आपको देखने से पता चल गया होगा, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देयर इज सब्स्टिट्यूशन, चेंज ऑफ लिमिट्स, देयर इज द प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx, देयर इज द प्रॉपर्टी हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, राइट, देन देयर इज log sum प्रॉपर्टी, sum of definite integrals is there, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स हैव अनदर वन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने ये क्वेश्चन आपसे स्टार्ट किया था, आपको लगेगा सर ने डिस्कस नहीं किया इसको। If I talk about this question, ठीक है, what was f of x? 1 upon 1 plus sin x. What was f of pi minus x? It was equal to f of x. We have already discussed about it. इसका मतलब this question will be twice 0 to half limit dx upon 1 plus sin x. आप सबको पता है, 10th हम सब ने बड़े ही सीरियसली पढ़ी है, जब भी हमारे पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस साइन एक्स, 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, कॉसेक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स, या टेन एक्स प्लस माइनस सेक एक्स और सेक एक्स प्लस माइनस टेन एक्स हो, व्हाट वी डू इज वी रैशनलाइज दैम। उससे होता क्या है, आइडेंटिटी यूज हो जाती है। सो इट विल बी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया होगा। व्हाट आई डिड इज आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय रैशनलाइजेशन, जिसको कहते थे आप, ट्वाइस 0 to π/2, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
I don't feel it has to be simplified further. Separate the numerator, you will get the answer, right? So let's have one more question based on the concept of half limit, and after that we'll be shifting to the next session. Okay friends, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. So this whole stuff is what f of x. अपर लिमिट माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा. सो इट विल बी पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स. क्यों ऐसे हो गया? बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन होल स्क्वेयर लूँगा तो प्लस हो जाएगा. साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, सॉरी इट वॉज स्क्वेयर, ठीक है. साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज वॉट, साइन एक्स, होल स्क्वेयर लूँगा तो साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, राइट. यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है मैंने. दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड हियर विद द रेड ink. This is f of pi minus x. This is second. What you do is add 1 and 2. When you add them you get twice of i. क्योंकि लोअर लिमिट 0 थी, सबसे पहले आप वही प्रॉपर्टी लगाओगे a minus x, ठीक है. सो when you add it it will be 0 to pi, ठीक है. ऐड करते हो x x कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, पाई बाहर आ गया. dx अपॉन दिस इज a स्क्वेयर cos स्क्वेयर x प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर x. ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल फंडा है, हम सबको पता है. व्हाट वी डिड इन डेफिनेट इंटीग्रल्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, करते थे ना हम लोग प्रॉपर्टी लगाने से पहले, अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हो. बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगेन कंसिडर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना. सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, 1 अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स. अब अगर आप एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन ए स्क्वेयर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, वही माइनस तो होल स्क्वेयर करके प्लस हो गया, और बी स्क्वेयर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स है, होल स्क्वेयर लगा के स्क्वेयर हो गया. दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो जब अपर लिमिट माइनस एक्स इस वाले केस में पहुंची तो चेंज नहीं आया, और आप सबको पता है जब चेंज नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई विल बी पाई इंटू हाफ ऑफ, सॉरी ट्वाइस ऑफ, आई एम सो सॉरी, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2. याद है ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, दैट इज हाफ लिमिट फॉर्मूला, right. This 2 and 2 gone. Now this is dx upon a square cos square x plus b square sin square x sin square x. So हमने ऑलरेडी ये डेफिनेट इंटीग्रल्स में पढ़ रखा है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, है ना. तो tan x को t लेके dt करके यू कैन सॉल्व इट फर्दर. इसके बाद दिस विल बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट. दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज में इतनी ही लगनी थी, हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज तक था, सो आई एम नॉट टेकिंग इट फर्दर. ओके फ्रेंड्स, राइट. क्योंकि इसके बाद भी अगर आप इसको लेके जाओगे तो फंक्शन विल नॉट चेंज, ठीक है. और उसके बाद अगर आप वापस हाफ लिमिट पाई बाई 4 में ले जाओगे तो फॉर्मूले और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे. इट्स बेटर यू डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन. सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल टू बाइंड अप दिस सेशन. लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो आपको थोड़ा सा, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. हम सबको पता था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली tan का जब भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाता था, tan का फॉर्मूला डिसाइड होता था डिनोमिनेटर से, राइट. ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1, मैं से प्लस कॉमन निकालता हूँ. सो इट इज़ x, इन दोनों में से कॉमन निकले यहाँ से, x कॉमन आया तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. और अगर यहाँ पे माइनस हो प्लस हो तो ऊपर माइनस आता है. फॉर्मूला क्या था हमारे पास, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यही होता था ना हमारे पास. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. तो अगर 1 के बाद प्लस हो तो ऊपर दोनों टर्म्स के बीच में माइनस होता था, अगर 1 के बाद माइनस हो ऊपर दोनों टर्म्स के बीच में प्लस होता था, ठीक है. सो ऊपर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, x माइनस 1 माइनस एक्स. चेक करके देखो, बन गया ये x प्लस एक्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, फॉर्मूला बन रहा है ना tan का. बिफोर अप्लाइंग प्रॉपर्टी आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई इट इन टर्म्स ऑफ tan फर्स्ट.
राइट, इफ इट इज़ फिजिबल। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे इट विल गिव यू नथिंग इंटरेस्टिंग। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ हो गई। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता डिनोमिनेटर से, लेट मी से, ठीक है, तो क्या बनता मेरे पास, tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकालता तो x कॉमन आता, सो माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स, इसमें से माइनस एक्स कॉमन निकाल दो तो x माइनस 1 बचता, ये बचता x माइनस 1। तो नीचे क्या है माइनस, ऊपर आएगा प्लस, ये पहला ये दूसरा, सो आई कुड हैव रिटन इट एज x प्लस x माइनस 1। दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, अपनी चॉइस है, जो आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो यू गो विद दैट, फाइन, चॉइस इज योर्स। सो I'll take up the first one, all right, you can try with the second one. So this will be actually equal to tan inverse x minus tan inverse 1 minus x। ये फॉर्मूला होता है tan inverse of x minus tan inverse 1 minus tan inverse a minus tan inverse b, tan inverse a minus b upon 1 plus a into b। So I can write it like this, 0 to 1 tan inverse x minus tan inverse 1 minus x dx. This will be 0 to 1 tan inverse x dx minus 0 to 1 tan inverse 1 minus x dx। ठीक है बॉस, मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट इंटेग्रल में प्रॉपर्टी यूज कर देता हूँ